السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک زبان کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ ہم لوگ آج کی کلاس میں عربک زبان کی ایک بک ہے منہاج العربیہ۔ منہاج العربیہ یہ بک پورے ہندوستان میں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ یہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے سی بی ایس سی بورڈ کے کلاس 6 اسٹینڈرڈ کے طور پہ یہ کتاب ان کے سلیبس میں، ان کے کریکولم میں، ان کے نصاب میں یہ کتاب داخل کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے بہت سارے اسٹیٹ بورڈ ہیں، جیسے یو پی بورڈ، بہار بورڈ، جھارکھنڈ بورڈ اور بہت سے ایسے بورڈ ہیں جہاں پہ منہاج العربیہ الجزء الاول یعنی پہلا پارٹ کلاس 6 میں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسکول بورڈ میں، اسی طرح اے ایم یو یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسکول بورڈ میں، بہت سے ایسے بورڈ ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب جو بنائی گئی ہے وہ 6 کلاس کے لیول کے بچوں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی بچہ کلاس 5 پاس ہو کر کے 6 میں جائے اور وہ عربک زبان کو ایز اے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ اگر چننا چاہتا ہے تو اس کتاب کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ پوری کتاب آپ لوگوں کو کلاس 6 کے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری پڑھائی جائے گی، ایک ایک کلاس ایک ایک ویڈیو میں۔ آپ لوگ اگر کلاس 6 کے ہیں تو اچھے سے آپ کے سبق کا اعادہ ہو سکتا ہے، آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عربک زبان کو، عربک سبجیکٹ کو ایز اے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ اگر آپ کلاس 6 میں لیتے ہیں تو اس ویڈیو کی مدد سے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ اس کی مدد سے آپ عربک زبان کو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے منہاج العربیہ اس کی تیاری بھی اچھے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے سلائیڈ پہ دکھ ہی رہا ہے، یہ منہاج العربیہ جو ہے یہ پہلا پارٹ ہے۔ اس کو السید نبی حیدرآبادی یعنی ایک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں یونیورسٹی ہے، اس کے سابق پروفیسر ہیں، انہوں نے کلاس 6 کے لیے ایک اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ تو کلاس 6 میں بچے کی جو ایج ہوتی ہے یعنی 12 سے 13 سال، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سی بی ایس سی بورڈ نے، یو پی بورڈ نے، بہت سارے ایسے بورڈ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ بچہ اس لیول کا ہے، تو اس لیول کا یعنی 12-13 سال کا بچہ عربک زبان کو سیکھنا چاہے تو اس کتاب کے مدد سے آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ تو ہم لوگ اب اپنے سبق کی جانب، اپنے لیسن کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بھی پڑھایا جائے گا تینوں میڈیم میں، انگلش میڈیم، ہندی میڈیم اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو میڈیم میں، کیونکہ بہت سے بچے جن کی انگلش اچھی ہوتی ہے وہ بھی عربی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ہندی میڈیم کا ہے اور اردو میڈیم کا ہے تو وہ بھی عربک لینگویج کو کلاس 6 میں ایز اے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ لے کر کے اس ویڈیو کی مدد سے سیکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی بھی اس کی ایج زیادہ ہے، اگر وہ عربک زبان سیکھنے، عربک کا لٹریچر، عربک زبان سیکھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کتاب کی مدد سے وہ عربک زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ دکھ رہی ہے یہ آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا اس کی پی ڈی ایف آپ وہاں سے یعنی اس ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز بھی میں ہاتھ سے بنا کر کے ٹیلی گرام چینل پہ ڈال دوں گا تاکہ امتحان کے دوران آپ کو تیاری کرتے ہوئے، اس کے مشق کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کریں، کمنٹ کریں، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیجیے، آپ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ عربک زبان کو
एज अ सब्जेक्ट के तौर पे क्लास 6 में लेना चाहते हैं बच्चे, लेकिन अफसोस की बात है कि पढ़ाने वाले टीचर नहीं दस्तयाब हैं, इसलिए बच्चे उसको ले नहीं पाते। और जब से कोरोना आया तब से ऑनलाइन क्लास होने लगी, इससे अरबिक ज़ुबान सिखाने के टीचर नहीं मौजूद हैं, इसलिए बच्चे इस सब्जेक्ट को ले नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट की यानी अरबिक लैंग्वेज क्लास 6 की आप अरबिक सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप देखें नीचे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही क्लास 6 की कोई भी वीडियो आपके सामने लेसन 1 लेसन 2 के अकॉर्डिंग इसी तरह कोई भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अरबिक का जो ग्रामर है उसको सिखाने की एक सीरीज़ पहले से चल रही है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर ही किसी भी लैंग्वेज की बुनियाद यानी बेस है। जैसे पिलर होता है, अगर वो मजबूत है तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग 4th फ्लोर 5th फ्लोर ऊपर तक खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह ज़ुबान की जो ग्रामर होती है उसकी बेस है, अगर आपको ग्रामर आती है तो उस ज़ुबान को आसानी से आप सीख सकते हैं। तो हम लोग अब सबक की जानिब चलते हैं। देखिए, अगर आप मिनहाजुल अरबिया का पहला सबक देखेंगे तो इस तरह से आपको बुक में दिखेगा, यानी दर्स माने क्या होता है? लेसन। दर्स माने क्या होता है बच्चों? लेसन। लेसन, इसको आप क्या कह सकते हैं? सबक भी कहते हैं, और हिंदी में जिसको आप पाठ कहते हैं। वैसे अगर आप ये उर्दू, अगर आप अरबी लेते हैं तो उर्दू आपने पढ़ी भी होगी, तो सबक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ। तो आज हम सीखेंगे 2 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो एक चीज़ आपने देखा होगा, कहा जाता है संकेत वाचक। संकेत मतलब जिससे आप किसी की तरफ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। संकेत वाचक। और प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप जानते होंगे अगर हिंदी बैकग्राउंड के हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। अरबिक ज़ुबान में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको आप अरबिक में कहते हैं इसमें इशारा। ऐसा इस्म, इसमें इशारा। क्या कहते हैं? इसमें इशारा। इसमें इशारा यानी ऐसा इस्म जिससे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। तो देखिए, अरबिक ज़ुबान में इसमें इशारा में एक हाजा है। एक क्या है? आज के सबक में किसके बारे में पढ़ेंगे? हाजा के बारे में। हाजा माने क्या होता है? हाजा माने होता है यह। क्या होता है? यह। उर्दू में आप यह कहेंगे, हिंदी में भी आप यह ही कहेंगे। इसके मुकाबिल में अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए आता है दिस। क्या आता है? दिस। और इसी के साथ आपको मालूम है, अगर कोई नज़दीक की चीज़ है, अगर कोई नज़दीक की है, पास की है, उसकी तरफ अगर आप इशारा करेंगे, उसकी तरफ संकेत करेंगे, तो उसके लिए आप यह ही यूज़ करते हैं, उर्दू हो या हिंदी हो। इंग्लिश में उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर दूर की चीज़ है उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? आप डैट का यूज़ करते हैं। डैट। डैट यानी वाह। उसके लिए अरबिक में क्या है? ज़ालिका। ज़ालिका जो आपका लिखा हुआ है। एक चीज़ आपने आज के क्लास में सीखी, इसमें इशारा। इसमें इशारा यानी संकेतवाचक सर्वनाम यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसमें से हम 2 के बारे में बच्चों आज के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन है? हाजा, दूसरा क्या है? ज़ालिका। हाजा यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर करीब है, नज़दीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाजा।
और अगर कोई दूर है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ज़ालिका। और ये इसमें इशारा जो स्टैंडर्ड लेवल के हैं उनके लिए ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एडिशनल के तौर पे, इसमें इशारा का एराब हमेशा एक ही तरह होगा। ये हाज़ा हाज़ा ही लिखा जाएगा और ज़ालिका ज़ालिका ही लिखा जाएगा, चाहे हालत रफ़ई हो, हालत नसबी हो या हालत जर्री हो। और इसी के साथ साथ हाज़ा ज़ालिका इसमें इशारा क्या होता है, मारिफा होता है। क्या होता है, मारिफा। आप लोग अगर क्लास 6 के हैं तो आप लोगों को इस चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है कि मारिफा क्या होता है, नकरा क्या होता है। बस आप इतना जानिए कि आज हम सीखेंगे हाज़ा और ज़ालिका के बारे में। हाज़ा माने क्या होता है, यह, और ज़ालिका माने क्या होता है, वाह। बस इतना आपको सीखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हाज़ा क्या है, अगर हाज़ा इसमें इशारा तो यह, किताबुन, किताब आपके सामने देखिए किताब बनी हुई है, किताब, हाज़ा किताबुन यानी यह किताब है। क्या कहेंगे, यह किताब है। इसका तर्जमा हो गया यह किताब है, हाज़ा किताबुन। हाज़ा क्या हो गया, अगर ऊंचे लेवल के आप हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाज़ा क्या है, मुब्तदा। मुब्तदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, सब्जेक्ट। और किताबुन खबर, खबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। अगर आपने इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा है तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीखे होंगे। तो हाज़ा क्या है, मुब्तदा, और किताबुन क्या है, आपकी खबर। तो हाज़ा किताबुन, यह किताब है। किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक। क्या कहेंगे, बुक, यानी दिस इज़ आ बुक। आपने एक देख लिया। दूसरा, ये तस्वीर में आपको क्या बना है, आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ आपके सामने एक हार्स है। क्या है, एक घोड़ा है। तो हार्स के लिए अरबिक में कौन सा लफ्ज़ आता है, फ़रासुन। क्या कौन सा लफ्ज़ आएगा, फ़रासुन। फ़रासुन माने क्या होता है, घोड़ा। और यहाँ उससे पहले क्या इस्तेमाल किया गया, ज़ालिका। तो ज़ालिका फ़रासुन। फ़रासुन सामने आपके तस्वीर बनी है, पिक्चर बनी है, यानी वह घोड़ा है। एक चीज़ पहले बताया गया, हाज़ा नज़दीक के लिए यानी दिस के लिए, और ज़ालिका दूर के लिए यानी डैट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ालिका यानी डैट इस, फ़रासुन आ हार्स। हार्स, हार्स माने क्या होता है, घोड़ा। तो आज के क्लास में आप क्या सीख रहे हैं, इसमें इशारा के बारे में, यानी जिससे आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। हाज़ा से नज़दीक की तरफ, ज़ालिका से दूर की तरफ। हमने देखा किताब है, किताब के लिए किताब नज़दीक है तो क्या कह दिया, हाज़ा किताबुन। और ये फ़रासुन, ये दूर है तो क्या कह दिया, ज़ालिका फ़रासुन, यानी वह घोड़ा है। अब हम आगे वाली स्लाइड को देखते हैं। देखिए आपके सामने क्या बना हुआ है, देखिए आपके सामने एक डॉग है। क्या है, डॉग। डॉग को आप उर्दू में क्या कहते हैं, कुत्ता। क्या कहते हैं, कुत्ता। अब ये डॉग को अरबिक में क्या कहेंगे, इधर लिखा हुआ है कल्बुन। क्या लिखा हुआ है, कल्बुन। आपने इससे पहले सीखा है ज़ालिका किसके लिए आता है, दूर के लिए आता है। तो यहाँ जब ज़ालिका है तो अब क्या तर्जमा करेंगे, वाह। क्या करेंगे, वाह। वाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैट। ज़ालिका कल्बुन यानी डैट इज़ आ डॉग, वह एक कुत्ता है। ज़ालिका दूर के लिए है, कल्बुन कुत्ते के लिए। ज़ालिका कल्बुन, वह एक कुत्ता है। आपका पूरा जुमला यानी सेंटेंस यानी वाक्य आपका बन गया। अब आगे देखिए, ये क्या आपको तस्वीर में दिख रहा है, ये तस्वीर में आपको दिख रहा है ऊँट, जो कि अरब कंट्री में पाया जाता है। ऊँट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल। आपने इंग्लिश में सीखा होगा। कैमल माने क्या होता है, ऊँट। और ऊँट को अगर आप अरबिक में देखेंगे उसके लिए कौन सा लफ्ज़ आता है, जामालून।
और ऊँट क्या है, करीब है, तो हम क्या कहेंगे, हाजा जमलुन। हाजा के माने क्या होता है, आपने पहले सीखा है, नज़दीक के लिए आता है, इसके माने का क्या होता है, यह। हाजा जमलुन, यह ऊँट है। और यह के लिए इंग्लिश में दिस यूज़ करते हैं, दिस इज़ आ कैमल, यह ऊँट है। हमने डॉग को देख लिया, ऊँट को भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बगैर तस्वीर देखे हुए इसको सीखते हैं। क्या है, हाजा किताबुन। आपने हाजा के बारे में क्या सीखा, हाजा किसके लिए आता है, दूर के लिए या करीब के लिए। हाजा आता है आपका करीब के लिए, दिस के लिए। हाजा किताबुन, यह किताब है, यानी दिस इज़ आ बुक। ज़ालिका कलमुन। अब देखिए, कलमुन माने क्या है, आप लोग एक नोटबुक रखें, जो भी नया लफ्ज़ है जिसका माना नहीं आता उसको आप अपने नोटबुक में लिख लें, ताकि बाद में आप इसका रिवीजन करेंगे, यादा करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ज़ालिका हमने सीखा है, ज़ालिका किसके लिए आता है, दूर के लिए आता है, यानी दूर की चीज़, उसके लिए इंग्लिश में डैट का इस्तेमाल करते हैं। ज़ालिका कलमुन, आप कलम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, कलम माने होता है पेन, तो अरबिक में भी कलमुन यूज़ करते हैं, यानी पेन। ज़ालिका कलमुन, वह कलम है, यानी डैट इज़ आ पेन। अब ज़ालिका किसके लिए यूज़ करते हैं, आप बताएं। ज़ालिका यूज़ करते हैं दूर के लिए, यानी डैट के लिए। अब फरासुन के बारे में अभी हमने उसकी तस्वीर देखी है, यानी घोड़े, यानी हॉर्स के लिए हम फरासुन का लफ्ज़ अरबिक में इस्तेमाल करते हैं। ज़ालिका फरासुन, वह घोड़ा है। हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन, हाजा किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, यानी दिस इज़ आ। कल्बुन किसके लिए यूज़ करते हैं, आपने तस्वीर पिछली स्लाइड में देखी है। कल्बुन यानी कुत्ता। अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसमें देखिएगा कि लिखा, पहले आपने तस्वीर आपकी किताब में भी बनी हुई होगी, हाजा कल्बुन, यह कुत्ता है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, हाजा कल्बुन, यह कुत्ता है। हाजा किसके लिए, नज़दीक के लिए। ज़ालिका किसके लिए आएगा, दूर के लिए। ज़ालिका जमलुन, जमलुन मतलब जिसकी आपने तस्वीर देखी, कैमल यानी ऊँट, वह ऊँट है। आगे क्या है, हाजा जमलुन। अब यहाँ देखिए, हाजा क्या आ गया, हाजा माने क्या होता है, यह। हाजा करीब के लिए आता है, तो यह ऊँट है। वहाँ क्या था, वह ऊँट है, यहाँ यह ऊँट है। ज़ालिका फरसुन, ज़ालिका माने क्या होता है, वह, यानी डैट इज़ अ हॉर्स, वह घोड़ा है। तो हमने क्या सीखा, हाजा माने यह, ज़ालिका माने वह। उसके बाद हम कोई इसम यानी कोई नाउन, कोई संज्ञा ला करके पूरा जुमला को, पूरा सेंटेंस बनाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। देखिए, जो कुछ हमने सीखा है आज के क्लास में, हमने क्या सीखा, एक तो सीखा है हाजा के बारे में, एक सीखा है ज़ालिका के बारे में। हाजा किसके लिए आता है, यह, यानी नज़दीक के लिए, दिस के लिए। और ज़ालिका किसके लिए आता है, दूर के लिए। ये आपका इसमें इशारा है, जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ की तरफ, किसी थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। तो आज की क्लास में हमने दो लफ्ज़ सीखे, एक हाजा, एक ज़ालिका, और उसका इस्तेमाल देखा। अब जो कुछ इस्तेमाल देखा, अब उसको हम हमारे सामने उर्दू में कुछ सेंटेंस हैं, कुछ वाक्य हैं, उनको हम अरबी बनाते हैं, ताकि हम हाजा और ज़ालिका का डिफरेंस अच्छे से समझ सकें। पहला हम लेते हैं, पहला क्या है आपके सामने, देखिए, यह कुत्ता है, यह यानी दिस, इसके लिए अरबिक में क्या आता है, आपने देखा हाजा, तो क्या हम पहला क्या कह देंगे, हाजा। और कुत्ता के लिए कौन सा लफ्ज आएगा, कल्बुन, हाजा कल्बुन। दूसरा क्या आपका है सेंटेंस,
वह घोड़ा है, वह किसके लिए आता है? वह यानी दूर के लिए वह, जब कोई चीज़ दूर हो उसके लिए हम वह यूज़ करते हैं। और अरबिक में क्या आता है? ज़ालिका, क्या आएगा? ज़ालिका। और घोड़ा के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है अरबिक में? अभी आपने देखा तस्वीर के साथ, फरसुन, क्या आता है? फरसुन। अब तीसरा क्या है आपके सामने? यह ऊंट है, यह के लिए क्या आएगा? हाजा। और ऊंट के लिए क्या आता है? जमालुन। आगे क्या है? वह कुत्ता है। चौथा क्या है? वह कुत्ता है। वह के लिए क्या आएगा? वह के लिए आएगा आपका ज़ालिका। और कुत्ता के लिए कौन सा लफ्ज़ अरबिक में यूज़ करते हैं? कल्बुन। ज़ालिका कल्बुन। पांचवा क्या है आपके सामने? पांचवा है यह घोड़ा है। ऊपर वह था, यहाँ यह के लिए क्या आएगा? हाजा। और घोड़े के लिए फरसुन। देखिए कितना आसान है। और उसके बाद छठा क्या है? वह ऊंट है। वह के लिए क्या यूज़ करते हैं? वह के लिए हम यूज़ करते हैं ज़ालिका। और ऊंट के लिए जमालुन। उसके बाद क्या है? यह कलम है। कलम के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता था? कलामुन। और यह के लिए अरबिक में क्या है? हाजा, हाजा और कलामुन। आप लोग जो आपकी किताब में एक्सरसाइज उसको खुद बनाइएगा, जो ना समझ में आए वीडियो देख करके आप उसका रिवीजन कीजिएगा। आगे क्या है? वह किताब है। वह के लिए क्या आएगा? वह के लिए क्या आएगा? ज़ालिका। और किताब के लिए किताबुन ही यूज़ करते हैं। आपने आठों की अरबिक देख ली। अब हम आगे देखते हैं और कुछ सेंटेंस आपके हैं उर्दू में। देखिए उसके बाद नवा क्या है? नवा आपके सामने है, यह इंसान है। नज़दीक के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? यह के लिए क्या यूज़ करते हैं? या के लिए हाजा, हमने आज पढ़ा ही है हाजा। और इंसान को अरबिक में भी इंसान कहते हैं, इंसानुन। यह इंसान है, यानी यह इंसान उर्दू में इंसान कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। हम 10वां देखेंगे। 10वां क्या है? वह हैवान है। वह के लिए क्या यूज़ करेंगे? ज़ालिका। और हैवान के लिए अरबिक में भी हयावान ही यूज़ होता है, हयावानुन। वह हयावान है यानी वह एनिमल है। हैवान के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? एनिमल यानी जानवर। यह सवाल है। सवाल जिसको आप कहते हैं क्वेश्चन या प्रश्न, यह सवाल है, इसको आप अरबी बनाइए। यह के लिए क्या यूज़ करेंगे? हाजा। सवाल के लिए सुआलुन, सुआलुन। 12 नंबर पे क्या है? वह जवाब है। कोई सवाल होता है उसका जवाब भी होता है। वह के लिए ज़ालिका और जवाब के लिए जवाबुन ही यूज़ करते हैं हम अरबिक में। अब हम 13 देखते हैं। 13 नंबर पे क्या है आपका? 13 नंबर में क्या है? वह किताब है। वह किताब है। वह के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है? ज़ालिका। और किताब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किताबुन। चौदहवें क्या होता है? वह कुरान है। वह के लिए ज़ालिका और कुरान के लिए कुरानुन, कुरानुन। 15वें पे क्या है आपका? वह इंसान है। अभी हमने इंसान को देखा। ऊपर क्या था? यह, यहाँ है वह। वह के लिए क्या यूज़ करेंगे? ज़ालिका, इंसानुन।
इंसानुन। आखिर में क्या है आपका 16वें नंबर पे, यह क्या है, हयावान है। यह के लिए क्या यूज करेंगे आप, यह के लिए हाजा, और हैवान के लिए हयावानुन। देखिए हमने देख लिया, सबका तर्जमा भी कर लिया अरबिक में किस तरह बनेगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में सीखा, एक मर्तबा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा है हाजा और ज़ालिका के बारे में। हाजा और ज़ालिका, हाजा किसके लिए आएगा, नज़दीक के लिए, करीब के लिए। इसके लिए हम इंग्लिश में दिस यूज़ करते हैं, यानी यह। और ज़ालिका किसके लिए यूज़ होता है, दूर के लिए, जिसके लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं डैट, और उर्दू और हिंदी में क्या कहते हैं, वाह। और उसके बाद कोई इसम लाते हैं, बहुत सारे हमने इसमें, जैसे किताबुन, कलमुन, और इसी के साथ साथ जमालुन, फरसुन, नए नए वर्ड सीखें। इसको आप अपने नोटबुक में लिखें और उसके सामने उसका मीनिंग लिख करके और उसको आप याद कर लें, ताकि अरबिक के कुछ अच्छे अच्छे वर्ड आपके जहन में बैठ जाएं। तो आखिर में जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, देखिए ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से वीडियो की लिंक और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जाते हुए आप लाइक करके जाएं, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें, उनको बताएं कि अरबिक ज़ुबान आप यहाँ से सीख सकते हैं, ताकि बहुत से बच्चे हिंदुस्तान में अरबिक सब्जेक्ट को 6 क्लास में ले सकें। इसी के साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास यानी नए लेसन, दूसरे लेसन के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो माअस्सलामा, इलल लिक़ा।